Now let's talk about inserting a chart from page 861. Now first of all, you should know what do you mean by a chart. Now chart is an effective way to display data in a graphical and pictorial form. See, you must have done these types of graphs like bar graphs or column graphs or these types of line graphs in your data handling chapters in maths. Clear? Here there you have done like a table you have made first, and with that table you have to draw the charts or graphs, you can say. Yeah, so same that type of charts only you can insert in the presentations, in the slides also, right? And you all know that is the pictorial representation. Yeah, graphically we are actually representing the data. जो आप table में data बनाते हो, लिखते हो 2000 समथिंग पॉपुलेशन बना रहे हो, सपोज पॉपुलेशन का ग्रोथ बना रहे हो एंड सो ऑन, कि इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन थी, इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन थी, या आप कोई क्रिकेट मैचेस देखते हो, उनमें आप दो टीम्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो एंड ऑल दैट एंड सो ऑन. सो इन दैट वे इफ यू वांट टू क्रिएट अ चार्ट देन यू कैन डू इन दिस presentation. Yeah, now charts make it easier to show comparisons, growths, relationship among the values and trends in data. तो आप अपने tables, अपने graphs या अपने charts के through growth दिखा सकते हो, कितना growth है, क्या relationship है between the values and all that. So these things you can insert, you can show in the form of charts. So charts provide an accurate analysis of the information. Accurate analysis दिखाता है आपकी information को, accurate बताता है, क्योंकि यही चीज़ अगर आप text के form में, tables के form में करो तो it can be a difficult job, but as जैसे ही आप एक picture के form में अपना information देखते हो तो it will give you the accurate results. Clear? Now when we insert a chart, the data is displayed in a special window called data sheet. Now very important thing, underline this full line. Data sheet यहाँ पर क्या है, एक special window है जिसमें आपका डेटा इंसर्ट होता है. क्लियर? तो जब आप डेटा को डिस्प्ले करोगे, इंसर्ट करोगे, तभी आप एक चार्ट को प्लॉट करोगे. क्लियर? तभी आप एक चार्ट डिस्प्ले कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो. तो एक डेटा जो है वो एक स्पेशल विंडो में आएगा, उसको हम डेटा शीट बोलते हैं. ये एक्चुअली एक एक्सेल की शीट होती है, लाइक MS पावरपॉइंट वी आर डूइंग, MS वर्ड वी हैव डन. एक ऐसे ही MS एक्सेल होता है, MS एक्सेल जो कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है अगेन. क्लियर? उसकी एक शीट आपको दिखेगी जैसे आप एक इंसर्ट करोगे चार्ट. क्लियर? सो आई विल शो यू ऑल्सो प्रैक्टिकली दैट. उसमें आपका डेटा डिस्प्ले होगा, टेबल डिस्प्ले होगा, और साथ साथ आपका चार्ट डिस्प्ले होता जाएगा. क्लियर? तो वट एवर यू विल डू इन द टेबल इट विल गेट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन टू द चार्ट. तो जो चेंजेस आप टेबल में करोगे वो आप चार्ट में विजिबल देखोगे. Clear? Like this. You can see in the next page creating a chart 5.17. This is actually a Excel sheet, और यही Excel sheet में आपने actually एक table बनाया है. जो table में आप लिखोगे, जो भी changes करोगे, whatever you will do in this table, it will reflect in this chart which is in the presentation slide. Yeah. So this is the data sheet window. Now a charts get automatically updated with any change in data. So data में जो changes करोगे, it will reflect to the chart. Now how to insert, these are all the steps they have given. Let's do. To insert a chart on a slide, follow these steps. First point is simple, that they are just telling about that आपने एक title and content layout लेना है. Clear? So just click on this home tab, layout button and so on. उसके बाद एक आप title and content layout लोगे, because इसमें हमारे पास एक icon होता है, insert chart icon. I'll show you practically, rest you can do from the book only. I have already actually drawn this chart. You can see this is my worksheet, data sheet. Clear? That is the Excel sheet, and this is my chart. Now I am explaining you again from the scratch. So let's see the first slide I have. This is the empty slide. जो पहले आपका first point दिया हुआ, यही दिया हुआ है कि home tab पे आपने जाना है, slides group में आप जाके layout ले सकते हो. ये है आपका layout button. Clear? New slide भी आप ले सकते हो, layout में आप अपना ले सकते हो टाइटल एंड कंटेंट. सो दिस इज माई टाइटल एंड कंटेंट. तो यू कैन सी देर आर एक्चुअली 6 आइकन्स. 6 आइकन्स में अगर आप देखोगे तो द सेकेंड वन इज द इंसर्ट चार्ट आइकन. आप डायरेक्टली यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो टेबल चार्ट,
यू कैन सी वन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आपने सेकंड पॉइंट अगर आप नेक्स्ट देखोगे थर्ड पॉइंट, तो दे आर टेलिंग अबाउट क्लस्टर्ड कॉलम. तो यहाँ से आपका ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होता है, ये आपने क्लिक करना है या इट इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड. क्लिक करो एंड प्रेस द ओके बटन, यू विल बी हैविंग द चार्ट. तो जैसे ही आप देखोगे चार्ट आया है, साथ में ही आपका एक डेटा शीट भी आ गई है. क्लियर, जिसमें आपके पास कुछ कैटेगरीज एंड ऑल दैट. ये बाय डिफॉल्ट डेटा है विच द पावर पॉइंट इज प्रोवाइडिंग यू. आप इसमें चेंजेस कर सकते हो. क्लियर, जो चेंजेस आप इस टेबल में करोगे दैट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन द चार्ट. क्लियर, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस टेबल ओनली विच आई हैव ऑलरेडी मेड. तो ये जब आपके पास इंसर्ट किया था आपने चार्ट, तो आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करो, then you will see its data sheet या its Excel sheet. Clear, जिसमें आपका सारा डेटा होगा. Clear, like I have to type now whatever is given in the next page in this point. This is simply just read these points and basically you have to write or fill all these points, all these entries. Clear, in this Excel sheet. जैसे आप Excel sheet में ये entries fill करोगे, आपके पास ये table बन जाएगा, आपके पास ये chart बन जाएगा. Clear, so these are very simple. You can see on this and do accordingly. And one more thing they have written about this blank button. Blank button में क्या होता है, ये होता है आपका Excel sheet में ये blank button. इससे क्या होता है, when you will click on it, it will select फुल शीट. मतलब सपोज ऑलरेडी कुछ लिखा होता है इसमें, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पहले जब आप एक इंसर्ट करते हो चार्ट, लाइक आई शोन यू कैटेगरी 1, वो जब हमने एक इंसर्ट किया था उस पर आप क्लिक देखते हो तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है. हमें ये एंट्रीज खुद करनी पड़ती हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं. तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यू विल सी कि पूरा का पूरा मेरा शीट जो है वो सिलेक्ट हो गया. एंड आई विल प्रेस डिलीट की फ्रॉम हेयर. क्लियर, डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड व्हेन आई विल क्लिक ऑन इट, तो ये पूरी शीट आपकी ब्लैंक हो जाएगी. फिर आप अपनी न्यू एंट्रीज कर सकते हो. नाउ आई एम नॉट डूइंग बट यू कैन डू विद दिस पॉइंट. क्लियर, सो ब्लैंक बटन इज फॉर दैट. डिलीट की से आपका पूरा वर्कशीट जो है, दिस डेटा शीट डिलीट हो जाएगी और आप फिर से न्यू एंट्री, न्यू टेबल अपने अकॉर्डिंगली you can make. Clear, and rest you can do yourself. These entries you have to put in the table. जैसे ही आप टेबल में एंट्रीज पुट करोगे, आप यहाँ पे देखोगे चार्ट अपने आप इंसर्ट होता जाएगा. आई एम शोइंग यू जस्ट 1 point और 2 points ओनली. यू कैन सी सपोज जनवरी में 800 है फूड आइटम. आप देखो यहाँ पर 800 ऐसे है फूड, और यू विल सी हेयर ऑल्सो दिस ब्लू वन इज फॉर फूड. क्लियर, तो जैसे ही मैं इस पे 800 पे क्लिक करके इफ आई विल चेंज समथिंग, सपोज आई एम डूइंग 200, लेट इट बी. तो अब साथ साथ देखना, वहाँ पर मैं 200 लिख रही हूँ और यहाँ पर आप देखोगे इट विल गेट चेंज्ड. 200 पे क्लिक किया और एंटर की प्रेस करो. कैन यू सी हेयर दिस ब्लू लाइन जो पहले यहाँ तक आ रही थी, नाउ इट इज़ कमिंग टिल हेयर. तो जैसे जैसे आप एंट्रीज यहाँ पर चेंज करोगे, अपने आप आपका चार्ट भी चेंज होता जाएगा. या नाउ नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेटिंग अ चार्ट. फॉर्मेटिंग अ चार्ट में क्या है, अगेन अपीयरेंस ऑफ अ चार्ट. इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू improve the appearance of a chart, so we can format the chart to add title, change the text, font, line color, width, border style. मतलब जो भी अब आपने ये चार्ट बनाया है, इसमें जो भी आप अपीयरेंस की चेंजेस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो. तो जैसे ही आप एक इंसर्ट करते हो चार्ट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 न्यू टैब्स विल अपीयर, दैट इज डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट. इन तीनों में आप देखोगे ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप अपना अपीयरेंस, चार्ट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हो. फाइन, सो लेट्स सी. यू कैन सी ओवर हेयर ओनली आई हैव शोन, आई एम शोइंग यू डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट. जैसे ही आपने टेबल इंसर्ट किया हुआ है, आपके पास ये 3 न्यू टैब्स आते हैं. ये पहले नहीं होते हैं, बट इफ़ यू विल क्लिक ऑन चार्ट, इंसर्ट करोगे चार्ट, तो आपके पास ये न्यू टैब्स आएंगे. क्लियर, तो लेट्स सी. फर्स्ट इज डिज़ाइन टैब से आप क्या कर सकते हो, which is given over there. So this is all few topics they have given. Chart layout group में आपने जाना है and click on this suppose. तो ये आपके पास कुछ layouts हैं, ठीक है, जिसमें आप changes देख सकते हो like this. या आपका टेबल, आपका जो चार्ट है वो कुछ उसकी layouts change हो जाएंगी. क्लियर,
So this one is the by default one. Yeah. Next we have changing background color and pattern. जैसे हमने background color slide पे लगाया था, बिल्कुल वैसे ही आप इसमें भी changes कर सकते हो. अभी they are telling only for the plot area. Plot area हमारे पास कौन सा होता है? Like you can see here this one. This brown part is the plot area. इस पे आप right click करोगे तो you will see one point as option is given, format plot area. Click on it and you will see this type of dialog box will appear. You have to click on, they are telling about the fill tab. Fill tab में texture button or picture or texture fill they are telling about. Yeah. Rest border styles, border colors also you can change of the plot area. अभी हम picture और texture fill में texture suppose कर रहे हैं. Right now already brown one which I was showing you, that is already selected. So right now I want to click something like this. Click on it, close it, and you will see the plot area will come in that texture. Yeah. So this is to change the appearance of the plot area or just the chart. Yeah. Now last topic we have is rearranging slides in slide sorter view. Now you must know about that there are few views. Yeah. Like this you can see here the icons are here, normal view, slide sorter view and the slideshow view. What is this slide sorter? ये जो आप ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हो ये होता है आपका नॉर्मल व्यू, जिस पे आप बेसिकली सारा काम करते हो, इंसर्शन करते हो सारी चीज़ों की एंड सो ऑन. बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लाइड सॉर्टर? जैसे मैं क्लिक करूँगी इसको, ये विल सी है थंबनेल्स विल स्टार्ट कमिंग. जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं वो थंबनेल्स व्यू में आ रही हैं. क्लियर? 1 2 3 4 ऑल द स्लाइड्स आर कमिंग लाइक इन दिस वे. तो बेसिकली हम इसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम क्या कर सकते हैं कि ड्रैग द सिलेक्टेड स्लाइड टू न्यू लोकेशन. बेसिकली मूवमेंट के लिए अगर आपको स्लाइड्स इधर उधर करनी है, चेंज करनी है उसकी लोकेशन, तब आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में बहुत इजीली कर सकते हो. तो ड्रैग द सिलेक्टेड स्लाइड टू अ न्यू लोकेशन, अ वर्टिकल बार विल स्टार्ट अपीयरिंग and then drag the slide. तो अगर आपने suppose second slide is there, I want to change its location. Click on it and you will see one vertical bar is coming. I want to place it after 5th slide suppose. So click on it and drag it and then that slide will move. Clear? It will become now from 2nd to 5th slide. Clear? So in this way you can do the changes. I can go on view tab also. They were talking about view tab in the book. View tab में भी आपके पास कुछ views होते हैं. So normal one, we were on the normal view first and this is the slide sort of. Clear? So hope it is clear. Next let's talk about the right parts. Few right parts are also there. Let's talk about that also. From page 57 first, you can see here to fill color in a shape में अगर आपने color fill करना है तो these are few steps. You have to go on home tab, drawing group and shape fill button is there. ठीक है, कोई भी आप शेप ली थी, जैसे हमने शेप्स पहले किया है, उसमें अगर आपने कलर फिल करना है तो यू कैन डू दी स्टेप्स. होम टैब पे जाना है, ड्राइंग ग्रुप इज देयर और यहाँ पे एक बटन बना होगा. क्लिक ऑन दैट, यू विल हैव अ कलर पैलेट एंड क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन एनी कलर एंड यू कैन डू द changes. Next is you can select more than one shape object by holding the shift key and clicking on the required object. मतलब suppose आपके पास कुछ shapes हैं. क्लियर? आपके पास कुछ शेप्स हैं, 2-3 शेप्स हैं. अब आपने एक ही टाइम पे सारी शेप्स को सिलेक्ट करना है, तब आप क्या करोगे, शिफ्ट की को होल्ड करोगे एंड क्लिक ऑन, स्टार्ट क्लिकिंग ऑन ऑल द शेप्स. जब आप सारी शिफ्ट की के साथ सबको क्लिक करोगे तो सारी शेप्स आपकी एक ही टाइम पे सिलेक्ट हो जाएंगी एंड देन यू कैन डू द रिक्वायर्ड चेंजेस. अगर आपने उनको मूव करना है, उनको डिलीट करना है साथ डायरेक्टली, तो तब आप ये काम कर सकते हो. क्लियर? Now flipping, what do you mean by flipping? Flipping means to create a mirror image of the selected shape or object. मतलब mirror image बन जाती है. जैसे mirror में आप अपना face देखते हो, it is just like that. Flipping से क्या होता है, बिल्कुल उसका opposite हो जाता है. Next we have on the next page, 59 page, Control plus P. Everybody knows about Control plus P is to print. Clear? तो print documents में भी हमने किया था, printing करनी है आपने, Control plus P is the shortcut key. Then Control plus D is to duplicate. तो slides की duplicacy करनी है आपने. एक slide बनाई है, उसके बाद दोबारा आपने slide same बनानी है, तो no need to make it again, you can copy it. ठीक है? तो delete duplicate करने के लिए उसको Control plus D you can click. And last is Control plus T
is the shortcut key again to open the font dialog box. अगर हमने last first pages पे you must have done about the increase font size and decrease font size. इसके लिए shortcuts they have given कि आप ये क्लिक करोगे तो तभी आप इंक्रीज फॉन्ट साइज कर सकते हो एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज कर सकते हो. दीज आर द शॉर्टकट कीज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द फॉन्ट एंड दिस इज द शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग बॉक्स. पहले डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो एंड देन you can also use these shortcut keys to increase the font size and to decrease the font size. Yeah, hope it is clear. Rest you can do the recap points also for your knowledge. That's it. Thank you.